Important questions of chapter 7, life science of the economy. First one is, what is the importance of, प्रयाग बेटा पेन नहीं है क्या? Then write down. What is the importance of roadways over railways? और डाल के लिखिए. How roadways are better than railways? How roadways are better than railways? Answer is, construction cost of roadways of roads is, construction cost of roads is much lower than, construction cost of roads is much lower than that of railway lines. Construction cost of roads is much lower than that of railway lines. Next point, roads can be constructed, roads can be constructed over rough terrain. Rough terrain, TERRAIN, can be constructed on rough terrain. Rough terrain, TERRAIN, terrain होता है surface. Yes. Road transport is, yes better, road transport is economically good. Road transport is economically good in transportation of goods. Road transport is economically good in transportation of goods over short distance. Over short distance. Next, it also provide, next point, it also provide door-to-door service. Door-to-door service, comma, the cost of loading and unloading is much lower. The cost of loading and unloading is much lower. Next point, road transport provides a link between railway station, airports and seaports. Railway stations, airports and seaports. सीपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स तक जाने पर के लिए भी आपको रोड्स की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स. explain golden quadrilateral super highways. Explain golden quadrilateral super highways.
क्वाड्रेंटल की स्पेलिंग QUADRILATERAL, क्वाड्रेंटल सुपर हाईवेज। लिखिए बेटा, द गवर्नमेंट has launched a major road development project. The government has launched a major road development project. The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi. Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi. हाँ जी, वहां से शुरू हो गया वहीं पर ही। Yes. It is a 6-lane super highway. हाँ जी, next point. It is a 6-lane super highway. ये जो अभी बाहर मेन रोड है, ये 2 लेन है, एक आने का एक जाने का, ठीक है। फिर सुपर हाईवेज भी तो आई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी फिर वैसी आएगी, टोल भी वैसे होंगे। चंडीगढ़ वाला जो रोड है वो सुपर हाईवे है। और ये 4 लेन, हाँ ये 4 लेन, मैंने कब मना किया, ये कुछ नहीं है, मैं ये क्या 2 साइडेड, जैसे आने वाले अलग जाने वाले अलग, ऐसे ही 6 लेन में 3 हो जाएंगे। ये तो चंडीगढ़ वाला हमारा सुपर हाईवे ही है, इसी का ही पार्ट है, हम पढ़ते हैं। ये शर्ट बेटा, ये फर्स्ट बेंच आपके लिए छोड़ रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट लिंक्स श्रीनगर, इट लिंक्स श्रीनगर, कॉपी पेन कुछ तो निकाल, लिखना शुरू करो। इट लिंक्स श्रीनगर थ्रू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इट लिंक्स श्रीनगर थ्रू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, लिख लीजिए आप। सिलचर एंड पोरबंदर, श्रीनगर के बाद कन्याकुमारी भी आएगा बेटा। इट लिंक्स श्रीनगर कन्याकुमारी थ्रू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सिलचर एंड पोरबंदर, SIL CHEL, सिलचर एंड पोरबंदर थ्रू ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, through east west corridor. Next point is the major objective of these super highways is the major objective of these super highways is to reduce the time, समय को कम करना और जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, इस मोटिव से ये हाईवेज बनाए गए हैं। The major objective of these super highways is to reduce the time. The major objective of these super highways is to reduce the time. Next, these highway projects are being, भाई साहब आप ही बोलो, इसका मतलब आपने नोटबुक नहीं बना रहा, मुस्कान को देखिए, उस नोटबुक में लिखा है सारे पहले। दैट पॉइंट, ये फर्स्ट पेज बैठ जाइए। Yes, these highway projects are being, these highway projects are being, ये next point है, these highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India. National Highway Authority of India. These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India.
देन डिफरेंशिएशंस हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवेज। आप बताएंगे नेशनल हाईवे देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़ते हैं, स्टेट हाईवेज एक स्टेट को दूसरे स्टेट कैपिटल को हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ता है। नेशनल हाईवे डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर रोड्स। एंड ये चार अलग अलग रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर रोड्स। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेंटेन करती है, स्टेट हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है। नेशनल हाईवेज देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़ते हैं, और स्टेट हाईवेज जो है वो स्टेट कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ जुड़ते हैं, और अदर रोड्स जो हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट को आसपास के जो भी गांव हैं उनके साथ जोड़ते हैं। लोकल रोड्स भी इसको कह सकते हो आप, या दीज जो अदर रोड्स हैं इनको मेंटेन करने का काम या बनाने का काम किया गया एक स्पेशल योजना के अंतर्गत, जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहा गया है। और इस योजना के अंतर्गत ये प्रयास किया गया कि हर गांव को आसपास का जो भी मेन शहर है उसके साथ जोड़ दिया जाए। और ये योजना जो है ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जो बीजेपी की सरकार थी उसमें अप्लाई की गई थी, उसमें शुरुआत हुई। Which is the longest highway, वन मार्क में लिख लीजिए, which is the longest national highway, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है हमारा? ये हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 7 है। लेंथ क्या है उसकी? बिना लेंथ के आप क्लेम नहीं कर सकते, और आप एनसीईआरटी को क्लेम नहीं कर सकते। आप गूगल को तो आप डिस्टेंस के साथ लिखें, हो सकता है आप राइट हो, लेकिन आप उसकी लेंथ बताएं और सेंटर बताएं कहां से कहां तक जाता है, ठीक है? ये आप फाइंड आउट करके लिखेंगे। हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये नेशनल हाईवे नंबर 7 है, लेकिन लेटेस्ट में अगर चेंज हो चुका है और अगर आपके पेपर में ये 1 मार्क में आए और आप लेटेस्ट लिखें तो मेंशन कर दें अकॉर्डिंग टू डाटा दिस ईयर, जो भी आप लेंगे, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को ये कंफर्म हो जाए कि आप गलत नहीं बता रहे हैं। अब मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, हमारे पास पिछला एडिशन है, उसके हिसाब से 2369 किलोमीटर नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे लंबा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये चेंज हो चुका है, नेशनल हाईवे नंबर 44 सबसे लंबा है। तो अगर हम मेंशन कर देते हैं कि इस ईयर के अकॉर्डिंग, तो वो आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। क्या इंपॉर्टेंस होती है बॉर्डर रोड्स की? बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और कौन मेंटेन करता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे मेंटेन करती है, और नो डाउट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, उनके डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ा है बॉर्डर रोड बनने के बाद। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ रोडवेज। सड़कों की क्या समस्याएं हैं? व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ रोडवेज? प्रॉब्लम्स ऑफ रोडवेज, सड़कों की प्रमुख समस्याएं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं रोडवेज की। पहला, एक तो ट्रैफिक और पैसेंजर्स लगातार इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ रोड्स के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। फिर रोड डेंसिटी हमारे यहाँ पर कम है। अगर आप कंपेयर करें जो हिली रीजन है वहां पर रोड डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, और यहाँ पर जो प्लेन एरिया है यहाँ पर रोड डेंसिटी कम, यानी कि संख्या के हिसाब से या व्हीकल के हिसाब से हमारे यहाँ पर रोड्स कम है, इसीलिए अक्सर जाम लगता है। जाम का कारण ये है कि रोड जो है चौड़े कम है। अब जैसे हमारे शहर में जो पुल बने हुए हैं तो बिल्कुल सिटी के बीच में, उनकी विड्थ कम है, अगर 2 ट्रक इकट्ठे आ जाएं तो आने जाने में मुश्किल आएगी, चौड़ाई कम लेकर बनाए गए हैं, ये और ज्यादा चौड़े होने चाहिए थे। सीजन के अकॉर्डिंग ये खराब हो जाते हैं। जो चारकोल से बनाए जाते थे, टारकोल से जो बनाए जाते थे, वो रेनी सीजन में धीरे धीरे रोड ही फट जाती है, फिर वो गड्ढे हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट का कारण बनते हैं।
हर साल लाखों लोग जो है वो रोड एक्सीडेंट के कारण मरते हैं। कोरोना टाइम पीरियड में भी हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई कोरोना से नहीं, रोड एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि सड़कों पे गड्ढे। देन नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट, जो हाईवेज बनाए जाते हैं वो सही तरीके से नहीं बनाए जाते। इवन रोड्स के ऊपर जो ब्रेकर बनाए जाते हैं वो भी सही तरीके से नहीं बनाए जाते। ड्रिंक एंड ड्राइव भी लिख सकते हो, क्या बात, क्या ड्रिंक एंड ड्राइव ये रोड की प्रॉब्लम नहीं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम ठीक है ना। जब आपको पता है ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए तो फिर आपको करना चाहिए। कुछ मॉरल आपकी रिस्पेक्ट बनती है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स जिन्होंने आपको पैदा किया। आपको कोई हक नहीं है कोई ये दुख देने का कि आप पी के गाड़ी चलाए और मर जाए। मैं तो एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैंने ये मिला एक बात है, ये सबके ऊपर अप्लाइड है। XYZ मैंने आपको अपनी नाम भूल लिया है, ये सभी के ऊपर है। अब मैं अगर सचिन को देखकर कुछ बात बोलूं जिसमें मुझे इसको कटाक्ष कर लीजिए कांग्रेस को नहीं ना सचिन, अपने अपने व्यूज हैं, कोई भी किसी को फेवर कर सकता है, वैसे हम किसी को फेवर नहीं करते। यस, जो नेशनल हाईवेज हैं या सड़क बनाते हुए अक्सर मटेरियल का ध्यान नहीं किया जाता, चीप क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल होता है। ऐसा लास्ट ईयर एक इंसिडेंस हुआ था, बिहार के अंदर एक पुल बना, उसका इनॉग्रेशन होने से पहले ही वो पुल ढह गया और उसमें बहुत सारे लोग मर गए। ये हंसने की बात, ये करप्शन है, यही करप्शन है। जिसने बनाया वो तो करोड़ों रुपए खा रहा है, लेकिन वो लोग क्यों सफर करें जो उसको इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हम भी हो सकते थे, हमारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता था। सोनीपत रोड पे फाटक लेन के पास एक बहुत ऊंचा सा ब्रेकर बना दिया और एक बच्चा जो सुबह अपने फादर को 4 बजे बस पे छोड़ने के लिए जा रहा था, उसे वो ब्रेकर जो है, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा ब्रेकर होगा और बिल्कुल फाटक के पास था, क्रॉस करते वो बाइक एकदम से जंप की थी। जब रोड खाली है तो नो डाउट आप स्पीडली चलाओगे, और वो ब्रेकर पे जैसे ही कूदा उसका बैलेंस बिगड़ गया। फाटक पे जो लगा होता है यस या बैरिंग जो भी, उसके ऊपर उसका सिर लगा, जाकर वो बच्चा वहीं मर गया, क्योंकि वो ब्रेकर जो वो ठीक नहीं बना हुआ था। तो जिसने वो बनाया, क्या वो मूर्ख थे? जब हर चीज सरकार डिफाइन कर देती है तो आप उस चीज को लेकर क्यों नहीं चलते? आप एक इंसान की, आम इंसान की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। आपने अपना पैसा ले लिया, सैलरी मिल रही है आपको एज ए इंजीनियर, और जिसने वो बनाया मिस्त्री ने, उसको भी मजदूरी मिल गई होगी, उस बच्चे का क्या कसूर है? और उस माँ बाप का जिन्होंने अपना इकलौता बच्चा खो दिया। तो ये चीजें हैं, ये रोड में ये ड्रॉबैक ही है कि हमारे यहाँ सिस्टम से काम नहीं होता, क्योंकि हम लोग कॉन्शियस नहीं है, हम लोग जागरूक नहीं है। जो हो रहा होता है हम उसको एज इट इज ऐसे एक्सेप्ट करते जाते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है। चैप्टर 3 था नाजिज्म वाला, हिटलर का, उसमें एक प्रीस्ट ने पोएम लिखी कि जब सोशलिस्ट को नाजिस्ट मारने आए ना तो मैं चुप रहा, क्योंकि मैं सोशलिस्ट था ही नहीं, मुझे लगा ये तो समाजवादियों को मारने के लिए आया है, मुझे क्या मतलब है। फिर वो कम्युनिस्ट को मारने के लिए आए तो मैं तब भी चुप रहा, क्योंकि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कम्युनिस्ट हूं ही नहीं। अगर वो मार भी रहे हैं तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर वो लिबरल्स को पकड़ने के लिए आए और उन्होंने लिबरल्स को भी मार दिया। फिर वो डेमोक्रेट्स को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने डेमोक्रेट्स को जब वो ले जाने लगे तभी मुझे लगा कि मेरा क्या मतलब है, मैं तो डेमोक्रेट्स भी नहीं हूँ, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। और जब मेरी बारी आई तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैंने किसी के लिए आवाज नहीं उठाई थी। तो हम लोग खुद को एक्सप्लॉइट करवाते हैं, हम लोग नई सच्चाई के लिए बोलते, अन्याय के लिए के खिलाफ नहीं बोलते, इसलिए हम लोग नफरत करते हैं। जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं, एक भी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी 10% फीस लगती है, यानी कि अगर आप 30 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो 3 लाख रुपए आप सरकार को दोगे, जिसमें उसका रोड टैक्स होगा, आरसी, ये वो। तो रोड इतने गंदे क्यों? ये झज्जर वाला जो ये करोथा के पास जो वो बना हुआ टोल बना हुआ है, एक वकील आ रहा था और यहाँ गड्ढा था, गड्ढे की वजह से उसकी गाड़ी पलट गई या साइड पे उतर गई नीचे, उसने केस कर दिया, वकील तो था ही, कोई फीस तो लगनी नहीं थी, तो उसको पैसा मिला उसके बदले। कि आप टोल के बदले पैसा ले रहे हो, आप फैसिलिटी दे रहे हो, आप पैसा ले रहे हो, तो अगर मेरी गाड़ी गड्ढे में गई है वो किसकी वजह से? रोड खराब था, तो आप मुझे कंपनसेट करेंगे। और जब मेरे को मेंटल हरासमेंट हुई है उसकी वजह से जो मुझे परेशानी हुई है वो कंपनी पे करेगी, मेरी गाड़ी का जो खर्चा हुआ वो भी कंपनी पे करेगी। कोई जा नहीं था कंपनी, ये जो हाईवे था, ये जो है टोल पे यहाँ लगा हुआ है बोर्ड इतना बड़ा, जाके देख के एक बार मुड़ो से साइड
ये प्रॉब्लम्स ऑफ रोड हो गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज, आप बता सकते हैं कि इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बेस्ट मीडियम है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज। वेलकम टू हुडा स्कीम मींस हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन। वेलकम टू हुडा। और अब इसको बदल दिया है, इसका नाम बदल गया है, इस डिपार्टमेंट का नाम हो गया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP। नेक्स्ट इज, क्योंकि हुड्डा का नाम सुनते ही सब ये सोचते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है, ऐसा नहीं है। HUDA उसकी एब्रिविएशन थी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन या अथॉरिटी। क्यों आप नहीं रहते? आप नहीं रहते? आप कह रहे नो मैम, आप नहीं रहते तो तक में आप नहीं रहते। बड़ौदी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? रजिस्ट्रियां कहाँ होती हैं तुम्हारी जमीन की? तो फिर आप कहाँ इंग्लैंड के हो? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यही नहीं पता, मत कर दे बेटा।